بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گفتگو ون واصف علی واصف صاحب کی میں کمپلیٹ کر چکی ہوں آڈیو لیکچر کے طور پر اور بک ریویو کے طور پر کہنا چاہیے، تو آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ اور آج میں نے بک 2 کا سٹارٹ کیا ہے اور اس میں چیپٹر وائز نہیں چلوں گی بلکہ کویسچن وائز چلوں گی، مطلب ایک لیکچر میں آپ کو ایک سوال کا جواب ملے گا۔ تو آج کا سوال ہے جی، اگر کوئی شخص ہم سے دعا کے لیے کہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب: جب کوئی شخص آپ سے دعا کے لیے کہے تو ایک چیز پر غور کر لیں کہ آپ نے اس کو یہ امپریشن کہاں سے دیا ہے کہ وہ آپ کو دعا کے لیے کہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری آپ نے اپنے ذمہ کیسے لگا لی؟ کہیں اس میں بناوٹ تو نہیں، کہیں اس میں کچھ نقل تو نہیں آ گئی؟ مقصد یہ ہے کہ کہیں آپ نے اپنے بارے میں کوئی ایسا امپریشن تو کریٹ نہیں کر دیا کہ آپ دعا کرنے والے ہیں، کیونکہ جو شخص دعا کے لیے کہہ رہا ہے اس کو آپ پر یہ اعتماد کیسے ہوا کہ وہ آپ کو دعا کے لیے کہے؟ کہیں آپ نے اپنے آپ کو غلطی سے نیک تو نہیں مشہور کروا دیا؟ اس کو کہاں سے مشاہدہ ہو گیا؟ 2 طرح کے آدمی ہوتے ہیں دعا کے لیے کہنے والے۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کو اشارہ ہو گیا کہ تیرے مسئلے کا حل فلاں شخص کے پاس ہے، یا پھر یہ کہ وہ شخص دعا کرے تو تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اشارہ غائبانہ طور پر بھی ہو سکتا ہے، خواب کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک کہانی سن لے۔ ایک آدمی درویش تھا، اس کا ایک دوست تھا جو شادی شدہ تھا۔ دوست سفر پر جانے لگا تو اس نے سوچا میں سفر پر جا رہا ہوں، اپنی بیوی کو میں کہاں بھیجوں؟ اس نے سوچا فلاں درویش میرے دوست ہیں، ان کی امان میں چھوڑ جاتا ہوں، اس طرح میں باہر کا سفر کر کے واپس آ جاؤں گا۔ صوفی صاحب نے اس صورت سے کہا کہ تو زنان خانے میں چلے جائے۔ اس طرح وہ شخص سفر پر چلا گیا، وہ عورت زنان خانے میں رہنے لگی اور صوفی اپنی عبادت گاہ میں رہا ہے۔ اس نے ایک دن پانی مانگا، اس کی اپنی بیوی کے بجائے اس مہمان خاتون نے اس کو پانی کا گلاس پیش کیا۔ اب صوفی نے اس کا ہاتھ دیکھا، ہاتھ کے حوالے سے ذہنی طور پر کوئی تصویر بنائی۔ لکھنے والے کہتے ہیں یا کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کا تقویٰ اور تصوف کا سارا قلعہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا، اس طرح کہ وہ محروم ہو گیا۔ اب وہ چلانے لگ گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس وقت تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کیا ہو گیا، آخر کیا واقعہ ہو گیا۔ وہ بے تاب ہو گیا کہ جگنو اڑ گئے، پرندے اڑ گئے، خیال چلا گیا اور تصور خالی ہو گیا۔ خیال کی نعمت سے خالی ہو جانے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ اس نے کیا کھو دیا ہے۔ اگر میزبان کے پاس کھانا ختم ہو جائے تو سب سے برا آدمی کون ہے؟ مہمان، کیونکہ اب میزبان اس سے اوائڈ کرے گا۔ جس آدمی کے پاس کھانا ختم ہو جائے وہ مہمان کو پسند نہیں کرے گا۔ جس کے پاس بات ختم ہو جائے وہ سامع کو پسند نہیں کرے گا۔ جس کے پاس جو چیز ختم ہو جائے وہ اس کے حاصل کرنے والوں کو پسند نہیں کرے گا۔ یہ اصول کی بات ہے۔ دکان ختم ہو گئی تو اب گاہک کو کیا کرنا ہے؟ گاہک تو پھر مصیبت ہے۔ اس صوفی درویش نے محسوس کیا کہ اس کا تصوف کمزور ہو گیا۔ پھر وہ وہاں سے پریشان ہو کے نکلا، اس چیز کی تلاش میں جو کھو گئی تھی، ضائع ہو گئی تھی۔ جہاں بھی گیا کسی نے اس کو تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ ایک مجذوب درویش سے ملا، اس نے کہا بات یہ ہے کہ آپ کوئی چیز ضائع کر بیٹھے ہیں۔ کہنے لگا کہ میں بہت کچھ ضائع کر بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا تمہارا علاج جو ہے فلاں آدمی کے پاس ہے، اگر وہ دعا کرے تیرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ وہ اس آدمی کے پاس گیا، آگے جا کے اس نے کوئی اور ہی منظر دیکھا۔ وہاں دیکھا کہ ایک مجذوب قسم کا آدمی بیٹھا ہے، اس کے پاس ایک چھوٹا سا خوبصورت لڑکا ہے۔ وہ اس بچے سے پیار کرتا ہے اور اس کے پاس شراب کا پیالہ رکھا ہوا ہے۔ وہ بچے کو شراب پلاتا ہے، خود بھی شراب پیتا ہے اور اس سے پیار کرتا ہے اور بوسہ بھی دیتا ہے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ صوفی نے سوچا یہاں سے واپس چلو، کیونکہ یہ وہ آدمی نہیں ہو سکتا۔ تب اس آدمی نے صوفی کو آواز دیا کہ بابا کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں آیا تھا کسی کام سے، لیکن لگتا ہے میں غلط جگہ پہ آ گیا۔ اس نے کہا تو غلط جگہ پہ نہیں بلکہ صحیح جگہ پر آ گیا ہے۔ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس بزرگ نے دعا کی اور مسئلہ حل ہو گیا۔ صوفی کو اپنا کانٹیکٹ واپس مل گیا۔ صوفی صاحب نے کہا اب ایک اور سوال پیدا ہو گیا۔ سوال اب یہ پیدا ہو گیا کہ یہ کیا ہے؟ جب آپ نے میرا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا تو محسن ہونے کی حیثیت سے یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہے جو آپ نے میرے ساتھ کر دیا؟ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بڑی آسان سی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ شربت ہے۔ بچے سے پیار کرتا ہوں کہ میرا بیٹا ہے اور شربت پی رہا ہوں کہ یہ میری خوراک ہے۔ اس نے کہا یہ سب ایسا کیوں ہے؟ دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے جیسے شراب پی رہے ہیں، اصل میں کیا واقعہ ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ سب اس لیے رکھا ہوا ہے کہ کوئی آدمی جاتے ہوئے اپنی بیوی میرے پاس نہ رکھ جائے۔ تو یہ ہے دعا کے راز۔ اگر آپ نے ویسے ہی مشہور کر رکھا ہے کہ میں صاحب دعا ہوں، تو پھر آپ کو توبہ کرنی چاہیے۔ ایسی مشہوری نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ کہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ اگر جینوئنلی آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے دعا کے لیے کہا ہے تو دعا کر دو، صرف فرض کے طور پر کہا ہے تو فرضی طور پر دعا کر دو۔ اس نے بائی دا وے کہا ہے تو اس کے لیے بائی دا وے دعا کر دو۔ جتنا اس شخص کا پر اعتماد ہے، وہ اعتماد دراصل آپ نے کریٹ کیا ہے۔ مثلا یہ کہ ہم تو عاجز ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب یہ شخص اپنا امپریشن دوسرے پر کریٹ کر رہا ہے۔ امپریشن اگر کریٹ کیا ہے تو کبھی غلط نہ کرنا، اس کے لیے آپ کی گرفت ہوگی۔ اب یہ سوال ہے کہ کوئی ہم سے دعا کے لیے کہے تو ہم کیا کریں؟ تمہیں دعا کے لیے کیوں کہے کوئی؟ سوال یہ ہے کہ اس فلاں شخص کو تو نہیں کہتے دعا کے لیے، اس دوسرے شخص کو تو نہیں کہتے دعا کے لیے، اور تمہیں کیوں کہتے ہیں؟ اگر کوئی امپریشن کریٹ کیا ہوا ہے تو اس کے لیے جواز مہیا کرو۔ ہم کسی کے لیے دعا کے لیے اس وقت کہتے ہیں جب کوئی مسئلہ اتنا تیز ہو جائے کہ ہمیں سمجھ نہ آئے کہ کس سے کہیں۔
मजबूरन हम आदमी हर एक से दुआ के लिए कहते हैं, हर एक से इसलिए कहता है क्योंकि इसको पता नहीं होता कि असल में किससे कहना है। इंसान खुदा की तलाश में कभी खानकाह के पास चला जाता है, कभी तलाश खुदा की बताता है, और मसला इसकी सेहत का होता है। चाहिए क्या सिफारिश, कहाँ गया खानकाह में, या किसी बंदे के पास, या डॉक्टर के पास, या हकीम के पास। गोया कि तकलीफ़ वाला आदमी बिला वजह भी आपसे दुआ के लिए कह सकता है। जब आपको तकलीफ़ होती है तो आप दुआ का सहारा लेते हैं, जो कि दरअसल खुदा का सहारा है। दुआ के लिए किसी को कहने का मतलब ये है कि खुदा के लिए दरख्वास्त है। अगर अल्लाह से तुम्हारा ताल्लुक़ है तो तुम मेरे लिए दुआ करो। किसी से दुआ के लिए कहना अच्छी बात है, लेकिन दुआ को मशहूर होने के लिए जवाब चाहिए। ये मेरी वार्निंग है कि ऐसा ना हो कि तुम मशहूर कर दो कि तुम दुआ करते हो। बाकी जहाँ तक दुआ का ताल्लुक़ है तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि दुआ करने से मसाइल हल हो जाते हैं। आधी ज़िंदगी की मुश्किल तो दुआ से ही हल हो जाती है, बाकी कोशिश से है। इस बात को आप यूँ कह लो कि ज़िंदगी में दो चीज़ें हैं, एक कोशिश है और एक नसीब है। कोशिश से बहुत कुछ हासिल होता है, लेकिन जो बुनियादी नसीब है ये दुआ का हिस्सा है, दुआ की तासीर है। ये कोशिश से हासिल नहीं होता। कोशिश से आप कोई अचीवमेंट कर लोगे, लेकिन दूसरे शख्स का दिल माइल होना नसीब की बात है। सफ़र का अंजाम होना नसीब की बात है। इस मंजिल पर जाने वाले कई मुसाफिर रास्ते में रुके। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का। तो कई लोग रास्ते में रह गए। जो नसीब जो है वो ये दुआ से बनता है। कामयाबियाँ बेशक कोशिश से बनती हैं, मगर वो कामयाबियाँ जो कोशिश से बनती हैं बाज़ औक़ात नसीब के बरक्स भी हो सकती हैं। बात समझ में नहीं आई क्या? ये बहुत गौर करने वाली बात है कि एक आदमी अपने मकसद में कामयाब हो गया और कामयाब होते ही ज़िंदगी में फ़ेल हो गया। कभी ऐसी मिसालें देखी हैं आपने? तारीख़ आलम में देखा होगा और तारीख़ पाकिस्तान में देखा होगा कि मकसद कामयाब हो गया और ज़िंदगी नाकाम हो गई। अगर गुनहगार का मकसद कामयाब हो जाए तो गुनहगार हो जाता है, और मकसद नाकाम हो जाए तो गुनाह से बच जाता है। चोर का मंसूबा कामयाब हो जाए तो चोर, लेकिन वो ज़िंदगी में फ़ेल हो गया। मकसद ये है कि हर बुराई अगर अचीवमेंट में कामयाब हो जाए तो वो अपने असल मुद्दा में फ़ेल हो जाते हैं। लिहाजा ये ज़रूरी नहीं कि हर कामयाबी असल कामयाबी है। अक्सर अगर मकसद बुरा हुआ तो कामयाबी बहुत बुरी चीज़ है। अगर मकसद अच्छा है तो नाकामी भी बेहतर है। मुद्दा यह है कि मकसद का इंतखाब ना हो तो फिर कामयाबी और नाकामी दोनों मीनिंगलेस हैं। दुआ के ज़रिए आप मकसद के इंतखाब में कामयाब हो जाते हैं, तो इस बात की दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह मुझे मकसद का इंतखाब करने में आसानी फरमा, या ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह मुझे कोई साहिब दुआ मिला। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सारी बातें दुआ के ज़रिए बताई हैं कि ये दुआ किया करो, मुझसे ये चीज़ मांगा करो, इससे खुशी होती है। फरमाता है कि मुझे ये कहा करो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधी राह दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ। साथ ही साथ ये भी बता दिया कि ये राह इंसानों की राह है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। गोया कि जब अल्लाह मेहरबान हो जाए तो इंसानों की राह समझ आ जाती है। ये तो नहीं हो सकता कि अल्लाह की राह हो और कोई आदमी चला ना हो। आज तक कोई ना कोई ज़रूर चला होगा। इन लोगों के नक्शे पा देखो जो अल्लाह की राह पर चलते हैं। इन लोगों को देखो जो अल्लाह की राह पर चल रहे हैं। अगर इन लोगों के साथ ताल्लुक़ नहीं है तो आप ये समझ लो कि अल्लाह के रास्ते के साथ ताल्लुक़ नहीं है। ये जो कहना है कि अल्लाह को उसके सीधी राह दिखा, असल में इसका रास्ता देखने वाली बात है। सबसे ज़्यादा कामयाब राह बल्कि एक ही राह है अल्लाह की, और वो है वो रास्ता जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, वही रास्ता सही है। बाकी सब राहें गलत हैं। ज़िंदगी में आप जो कामयाबी हासिल कर रहे हो ये मीनिंगलेस हो सकती है। शोहरत हासिल करते हो ये धोखा दे सकती है। दौलत हासिल करते हो ये नुकसानदेह हो सकती है। रास्ता वही है जो अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ले जाए, और इस राह पर चलने वाले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलेंगे तो सिर्फ वही रास्ता सही होगा, वरना रास्ता नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा ना बनना कि शोहरत के लिए आप अपने आप को और हकीकत को ज़ख्मी कर लो। दौलत और शोहरत के अलावा एक तीसरी चीज़ भी हो सकती है। तीसरी चीज़ जो है वो इसे कहते हैं लज़्ज़त वजूद। तो अब तीन चीज़ें होती हैं, यानी दौलत, शोहरत और लज़्ज़त वजूद नफ्स। इन तीनों में अगर एहतियात की जाए और इन तीनों को अगर कलमा पढ़ा दिया जाए तो समझो कि आपका रास्ता आसान हो गया। यही तीन मकामात हैं जहाँ से आपका ख़तरा है, और चौथा मकाम कोई ही नहीं। शोहरत हासिल करने के लिए ख्याल की इस्लाह करो। दौलत हासिल करने की तेज़ रफ्तारियों को धीमा करो, और अपनी लज़्ज़त वजूद की ख्वाहिशात हैं इनको ठीक करो। ये तीन काम आप कर लो तो आपकी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। ये तीनों काम जो है अक्सर इनमें मुश्किल हो जाती है इंसान को, और वह तीनों से ही नुकसान उठाता है, और फिर इंसान ऐसे होता है जैसे ज़ख्मी परिंदा, ना उड़ने के काबिल और ना वापस जाने के काबिल। तो वो ना शिकार के काम आया और ना शिकारी के काम आए। इसलिए ये देखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। जब कोई दुआ के लिए कहे तो आप देखो कि इसने क्यों कहा। अगर कोई ताल्लुक़ के बगैर दुआ के लिए कहता है तो वो ऐसे ही सरसरी कह रहा है। आप भी कह दें कि अच्छा मैं दुआ कर दूँगा। दुआ भी कर दो कि या अल्लाह बेहतरी फरमा। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा है कि या अल्लाह ये आदमी मुझे नेक समझता है और दुआ के लिए कहता है तो मुझको सचमुच का नेक बना दे। एक तो ये मकाम है, फिर इसके लिए दुआ करो। ये भी हो सकता है कि आप किसी के लिए दुआ करें और फिर अल्लाह ताला फरमाए कि तू इस शख्स के लिए दुआ कर रहा है जो मेरा बागी है और मेरी बात नहीं मानता। जब तक वो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ ना बनाए तो अल्लाह कैसे इसकी बात माने। कोई शख्स ऐसा नहीं हो सकता जो किसी बागी के लिए अल्लाह ताला से दुआ का जवाब ला सके।
दुआ ये हो सकती है कि अल्लाह ताला बागियों को अतात में ले आए ताकि इनकी दुआएं मंजूर हो जाएं। दुआ इस शख्स की मंजूर होती है जो तुम्हारी बगावत और दूर करे और तुम्हारी इस्लाह अहवाल करे, ताकि तुम भी अल्लाह की राह पर चल पड़ो। वरना ये रिवाज बन जाएगा, ये सिर्फ रस्म बन जाएगी और रिवाज बन जाएगा कि बागी को फैज़ दिया जाए। तो ऐसा तो नहीं हुआ, आज तक बागी को फैज़ नहीं मिला। इस पे ज़रा साहिबान फ़िक्र गौर करें कि पाकिस्तान में लाखों के हिसाब से पीर खाने हैं और इन्हें देखा जाए तो वही काम कर रहे हैं जो बुज़ुर्गों ने दुआ करते हैं और दुआ देते हैं। जहाँ कवाली होती थी वहाँ कवाली जारी है, जहाँ महफिल ज़िक्र थी वहाँ महफिल ज़िक्र जारी है, हर वो काम हो रहा है। अब एक शख्स पीर साहब के पास गया कि जनाब दुआ करें, तो उन्होंने दुआ कर दी। फ़र्ज़ करो दुआ मंजूर हो गई और अगर बच्चे से कत्ल हो गया और बच्चे की माँ ने पीर साहब से कहा कि आप दुआ करें कि मेरा बेटा बरी हो जाए। पीर साहब ने जेन्युइनली दुआ की और बेटा बरी हो गया। अब मकतूल का हक जो किधर है वो किधर गया? आप सब बात समझ रहे हैं ना। इसलिए दुआ करने वाला ये ख्याल करे कि इसकी दुआ करने के अमल से किसी और का हक ख़त्म ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि दुआ के पूरा होने से कोई और शख्स किसी चीज़ से महरूम हो जाए। आमतौर पर यहाँ आकर दिक्कत पैदा हुई कि मशाइख ने हर एक के लिए दुआ कर दी। हर एक के लिए दुआ करना और नाजायज़ ख्वाहिश के लिए दुआ करना। आकर कहते हैं कि नंबर निकला है, कोई लॉटरी निकला है। अगर जेन्युइन दुआ कर दी और लॉटरी निकल आई तो फिर ये सारा निज़ाम ही गलत हो गया। लोग आकर कहते हैं कि दुआ करें कि घोड़ा डरबी रेस जीत जाए। दुआ का मकाम यह है कि अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने वालों को जब कोई बात समझ ना आए तो दुआ के ज़रिए इसका हासिल इन्हें ला दो। इसके अलावा जो बात है वो दुआ का मकाम नहीं है। जिस ज़ात से दुआ कर रहे हो इस ज़ात ने रास्ता बता दिया, इस रास्ते के मुताबिक चलो। दुआ का ये मकाम है कि दुआ अल्लाह की तरफ जाती है और अल्लाह से तासीर लाती है। एक शख्स जो यतीम का माल हज़म कर गया कहता है कि दुआ करो बस अल्लाह मुझ पर रहम करे। अल्लाह तुझ पर रहम करेगा जब तू यतीम का माल वापस कर देगा। अब तो जुल्म करने के बाद रहम मांग रहा है तो ये तेरी बड़ी गलती की बात है। इसलिए दुआ के पर्दे में बड़े जुल्म होते रहे हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए। अब आप दुआ करनी बंद कर दो। अब आप जनरल दुआ करो, कौम के लिए दुआ करो, मिल्लत के लिए दुआ करो, ये बच जाए। और वो लोग जिन्होंने मुल्क को खाया इनके लिए दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह ये हिस्सा इनको हज़म ना हो। दुआ करो कि जिसने यतीम का माल खाया इसको हज़म ना हो, इसको खुद ही पेट में दर्द हो ताकि ये वापस कर दे। एक दूसरे का माल हज़म करने के बजाय इसकी आदत अब बदल जाएगी। आप एक दूसरे के माल ना खाया करो, माल यतीम ना खाओ, एक दूसरे का माल भी ना खाओ और धोखा ना करो। जितनी बातें अल्लाह ताला ने मना की हैं इन बातों से बचो। फिर दुआ का मकाम ये है कि जहाँ कोशिश नहीं पहुँचाती वहाँ दुआ पहुँचाएगी। मरीज़ को कोशिश करके थक चुका है, डॉक्टर दवा दे चुके हैं और अब दुआ की ज़रूरत है, या फिर वो आदमी दुआ करे जो डॉक्टर के पास शुरू से ही ना जा सकता है। वो कह सकता है कि देखा जाएगा। दुआ के ज़रिए चलने वाले बेशुमार लोग हैं जिन्होंने आज तक डॉक्टर की एक गोली भी नहीं खाई। वो दुआ के कायल हैं और दुआ को मानते हैं। इसलिए ये देखो कि अल्लाह के साथ तुम्हारे ताल्लुक़ की जितनी रेंज है इतनी ही दुआ की रेंज करो, दुआ की रेंज है। अगला सवाल जो है वो अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।